زندہ باد، اپنی میں سو زندہ باد، زندہ باد ہے اتنا ہی ڈسٹینس ہے، اور وہ ڈسٹینس پورا ہوگا ماڈرن زمانے میں ایک ہی طرح سے، میرا ماننا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس، سائنٹیفک ٹروتھ، اسٹیٹسٹکس، میتھس، جب ہم اس میں غوطہ زن ہوں گے تو یہ ہمیں اسلام کے قریب لے آئے گا۔ اب بہت لوگوں کو صحیح ڈر لگتا ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ سائنس کے پاس جانے سے کیا ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ولیم فریزر نے بہت اچھا دیا تھا، میں آپ کو وہ جواب سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سائنس، تھوڑی فلسفی بے شک رب سے دور لے جاتی ہے، لیکن بہت سارا سائنس اور بہت ساری فلسفی رب کے ایک دم قریب لے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس انسان نے انوائرمنٹلسٹ ہے، جیوگرافسٹ ہے، میٹالرجیکل انجینئر ہے، اس نے دنیا میں جتنا دیکھا ہے، وہ جب سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس کی نالج اس کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جب سورہ رحمان میں رب بار بار کہتا ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں تم جن کو ٹھکراؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ آیت کی گہرائی سمجھنے کے لیے آپ کا فہم و ادراک اس زمانے کے حساب سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہے تو سائنس اور فلسفی بجائے آپ کو اسلام کے دور لے جانے کے، یہ جو گیپ ہے دو انگلیوں کے بیچ میں ان کی پینٹنگ میں، وہ گیپ ہماری روح میں ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے رب کو سائنس کے تھرو، ماڈرن زمانے کے تھرو پا سکیں گے۔ اسے رینیساں کہتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیے، رینیساں called upon the people to take a rational approach، ریشنل ہونا چاہیے تھا، and study of literature, science and art instead of religious and dogmatic approach۔ ہاں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے کہ لٹریچر، سائنس اور آرٹ یہ پڑھنا چاہیے، ریلیجس اینڈ ڈاگمیٹک چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے مذہب کی خوبصورتی کچھ اور ہے، جب ہم سائنس، فلسفی، ریلیجن، سائنس، فلسفی اور لٹریچر پڑھنے کے بعد اپنا ریلیجن اٹھاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ اسلام کی کیسی حقانیت ہے کہ ہم اس مذہب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ آج پورے ورلڈ میں، انڈیا میں، پورے ورلڈ میں دلوں کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں سب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ تو جب غلط ہو رہا ہے اور دنیا جو چاہ رہی ہے، دیکھیے وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں رہے، الٹا اپنے مذہب کے اور قریب ہو رہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ تو ہمیں لٹریچر، سائنس اور آرٹ کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں رب کی خوبصورتی دکھائی دے۔ اس کی ایک مثال محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک قصے سے ملتی ہے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب چل رہے تھے تو آگ دیکھی انہوں نے ایک لکڑی پر، اور اس میں منہ ڈال کر اس کو چوم کے کہا کہ الحمدللہ۔ اس جلتی آگ میں انہوں نے اللہ کی خوبصورتی دیکھی۔ تو لٹریچر میں، سائنس میں، آرٹ میں جب ہر لائن ہم ایمان میں ڈوب کے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے رب کے قریب ہم کو لے آتا ہے۔ تو رینیساں ایک برج ہے اس زمانے اور اس زمانے میں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس زمانے کے لٹریچر کو لے کے آئسولیٹ ہو جائیں۔ اس زمانے کے لٹریچر کو جب ہم اس کنٹیکسٹ میں پڑھیں گے اور اس زمانے کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو اسے رینیساں کہتے ہیں۔ امام مالک کے لفظوں میں دوسرا جنم ہمارا ریوائول، ہمارا ریبرتھ سمیت بھائی بتائے۔ ایکسکیوز می، جی یہ جو آپ نے سلائیڈ شو کر رکھا ہے، اس شاید تھمبنیل ویو ہے، تو ہم لوگوں کو 12 سلائیڈیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا 12 سلائیڈیں نظر آ رہی ہیں؟ ہاں ہاں، ایک سیکنڈ، تو اس کو آپ سلائیڈ ویو کر دیں گے؟ یہ دیکھیے اب شاید ٹھیک ہے، ایک آ رہی ہے نظر؟ نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ سلائیڈ ویو کریں گے تو ہاں اب آ گئی۔ اوکے اب آ گئی، اب ٹھیک ہے بھیا۔ جی جی بالکل مجھے بہت دیر سے، ٹھیک ہے ہاں کوئی اوکے۔ تو رینیساں ایک برج ہے، اس زمانے کی سوچ اور اس زمانے کی سوچ۔ رینیساں ایک آئیڈیا کا فریش اپلیکیشن۔ رینیساں قرآن اور حدیث سے ملنے والی فلسفی کو آج کے زمانے کے سوالوں کا جواب کیسے بنائیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں رینیساں۔ انہوں نے تب کیا تھا، 21ویں صدی میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں آپ ایک اور دیکھیے،
کہ रेनेसांस का कॉज क्या होता है, तो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे कि एनी ग्रेट मूवमेंट इन हिस्ट्री, ये कभी सिंगल वजह से नहीं होता, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंट. ऑन द अदर हैंड इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ कॉजेज. बहुत सारी वजूहात जब मिलकर एक साथ आती हैं तो हिस्ट्री में एक ग्रेट मूवमेंट क्रिएट होता है. आज उसी ग्रेट मूवमेंट को समझने हम यहाँ पर जमा हुए हैं और उसी को रेनेसां कहते हैं. जो तो सबसे पहले रेनेसां किसी कौम में लाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, तो कुछ बच्चे अगर कागज और पेन लेके बैठे होंगे तो यहाँ से बड़ा इंस्पिरेशनल है, वो उसको नोट कर सकते हैं. किसी भी कौम में रेनेसां लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसमें ओरिजिनल थिंकर्स का होना. अगर हम इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत को इतना मानते हैं, अगर हम इमाम शाफई को, इमाम हम्बल को, इमाम मालिक को, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी को अगर हम इतना मानते हैं, रिजवान अल्लाह ताला अजमीन, तो इसकी वजह है ऑल ऑफ देम वेयर ओरिजिनल थिंकर्स. ऑल ऑफ देम वेयर ओरिजिनल थिंकर्स. और इमाम बाकर का एक कॉल है यहाँ बहुत प्यारा, अपने वक्त का इमाम अपने कौम का और उस जमाने का नब्बाज होता है. नब्बाज किसे कहते हैं? जो नब्ज पे अपनी उंगली रखे. तो इमाम वो है जो उस जमाने की नब्ज पे उंगली रखता हो, और उसके लिए जरूरी है कि ओरिजिनल थिंकर्स आना चाहिए. तो फिर जो चार इमाम हैं और बरेली से हैं, इनका क्या रोल है? ये वो रोशनाई है, ये वो उजाला है, ये वो मुनव्वर नूर है जिसकी रोशनी में हमें इस जमाने के सवालात को पढ़ना है. मैं कभी कभी बहुत मिस करता हूँ, मैं सोचता हूँ काश आज इमाम आजम होते तो वो सच्चर समिति की रिपोर्ट और पोस्ट सच्चर की रिपोर्ट को कंपलसरी मदरसे के सिलेबस में शामिल करवा. मुझे कभी कभी लगता है कि 72 उलूम जानने वाले हमारे इमाम होते बरेली से, तो वो मैथमेटिक्स को, साइंस को, नैनोटेक को, वो बायोटेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मदरसे का एक हिस्सा बनाते. आज हम अपने इमामों की इतनी इज्जत इसलिए करते हैं कि उस जमाने के नुमाया कोर्सेस को वो महारत के साथ पढ़ते थे. तो क्या आज हमें आज के ज़माने के कोर्सेस को महारत के साथ नहीं पढ़ना चाहिए? ओरिजिनल थिंकर्स का ये काम होता है कि वो थॉट को, सोचने के तरीके को और एक्शन को पूरी तरह रिवॉल्यूशनाइज कर दे. थॉमस एक्विनस ने एक बार कहा था कि द प्राइम ऑथर एंड मूवर ऑफ यूनिवर्स इज इंटेलिजेंस. और इमाम गिजाली को एक किताब मिल चुका है कि फलसफाई फिलोसफरों के फिलोसफर है. रॉजर बेकन ने ये किया था. एक्सक्यूज मी सर, He openly criticized the incorrect attitude of church. उस वजह से रॉजर बेकन को 10 साल के लिए जेल में भेजा गया. अभी हम यहाँ बैठकर जो इतनी रिवॉल्यूशनरी बातें कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात में, खासकर बरेलियत में, क्या पता कई लोगों को ये नागवार गुजर रही हो और वो हमें जेल तो नहीं भेज सकते, लेकिन 10 साल के लिए क्या पता वो हमें बॉयकॉट कर दे. लेकिन इसका एक ही मतलब है, इस डर से नहीं, इस जरूरत से कि हमें कहाँ बदलना है, हमें अपने अंदर चेंजेस लाना चाहिए. एक बहुत बड़ी बात एरिस्टोटल के बारे में कही थी उन्होंने कि अगर मेरा बस चले तो मैं एरिस्टोटल की सारी किताबों को जला दूं, क्योंकि वो बहुत सारी गलत बातें बताती है. आज हम ये वाले डायलॉग को खूबसूरती की तरफ मोड़ कर कह सकते हैं, अगर हमारा बस चले तो हम जदीद साइंसेस के मुताबिक दोबारा अपनी शरीयत की किताबों को पढ़ना कंपलसरी करवा दें. और जितने सवाल पूछे जाएं वो उस जमाने में पूछे गए थे, उनके जवाब लिखे हुए हैं फतुहात में, फतावों में. उन जवाबों को हटाकर इस जमाने के सवाल ले आए और इस जमाने के जवाब को हम अपनी किताबों में ढूंढें. तो आगे चलने पर अगर आप देखेंगे किस चीज ने उन्हें मजबूर किया था इतना सोचने पर, तो क्रूसेड कहते हैं उनके जिहाद को. जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में क्रूसेड हुआ तो अपनी तमाम दुआओं, तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद जब ईसाई हार जाते, तो हारने के बाद उस हार को, मुसलमानों से हुई हार को बड़ा पॉजिटिव वे में लेकर सोचते कि हम में वो क्या कमी है जो मुसलमानों में है और मुसलमानों में बेतहाशा है, हम वो अपने अंदर कैसे पैदा करें. आज मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि सारी दुनिया में जो हम हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, हम में वो क्या कमियां हैं
जो इस जमाने की बाकी कौमों में बेहतरीन तरीके से मौजूद है, और वो बात हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। क्रूसेड में वो हार तो गए, लेकिन अपनी खुदी को उन्होंने इस कदर बदला उसके जवाब में कि उन्होंने हिस्ट्री का कोर्स ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उनका जो ब्लाइंड फेथ था, अंधभक्ति थी, वो बदल गई, उनकी इमेजिनेशन बदल गई, और अपने जमाने के सवालों से भागने के बजाय उसके जवाब वो अपनी किताबों में ढूंढने लगे। आज काश अल्लाह ऐसा कर दे, हमारी सोच बदल जाए और इस जमाने के सवालों से भागने के बजाय हम इसके जवाब अपनी किताबों में ढूंढें। जब हम सवाल से जितना दूर भागते हैं, जवाब उतना डिले हो जाता है। तो शुजात भाई से एक बहुत गुजारिश है कि इस तरह के सेमिनार होना चाहिए, जहां हमको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि बाकी कौमों ने ऐसा क्या किया जो हमारी कौम कतई भी नहीं करती। इसके बाद वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि उस जमाने में एक चीज हुई थी, और वो ये हुआ था, फ्यूडलिज्म का खात्मा हो गया था। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है बहुत अमीर और बहुत गरीब। जब ये बहुत अमीर और बहुत गरीब का इम्तियाज खत्म होता है, इनका डिफरेंशिएशन खत्म होता है और एक मिडिल क्लास आता है, तो मिडिल क्लास इंजन होता है रेनेसां का। आज आप देखिए कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले, अपने बच्चों को हाफिज कुरान कराने वाले कौन लोग हैं। तो आपको अभी तक ये ट्रेंड था कि कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले मिडिल क्लास से आते थे और बच्चों को हाफिजा कराने वाले पुअर क्लासेस से आते थे। लेकिन आप मानेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन आप आएंगे तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड चेंज होने लगा है। इस लॉकडाउन में मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो MBBS MD MS हैं, एट द सेम टाइम उसी वक्त दे आर ऑल्सो हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो फ्यूडलिज्म का खात्मा है, और जब भी किसी कौम में जब तक एक मिडिल क्लास नहीं आएगी, ये रेनेसां के स्पिरिट को आगे नहीं ले जाती है। तो फ्री एंड फ्लरिशिंग टाउन्स होना चाहिए, राइज ऑफ मिडिल क्लास होना चाहिए, और बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच का फासला कम होना चाहिए, ओरिजिनल थिंकर्स होना चाहिए, पुरानी किताबों को इंस्पिरेशन की तरह लेते हुए नए जमाने के सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। इस सब चीजों को जब हम एक साथ लाएंगे तो वो रेनेसां कहलाती है। लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, दे ऑल्सो टुक द इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस with the primary object of imparting education to their kids and kids। यहाँ काश ये लाइन इस सदी में हमारी कौम के लिए कोई लिख दे कि they also took the initiative to establish educational institution। उसकी जगह मदरसा ना हो, वो मदरसा हो जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, वो मदरसा हो जो उस्मानिया ज़माने में था, जहाँ इस्लामिक साइंसेस के साथ साथ दुनिया का हर साइंस पढ़ाया जाता था। काश हमारे मदरसे में कंपैरेटिव रिलीजन में भागवत गीता पढ़ाई जाए, काश हमारे मदरसों में कंपैरेटिव रिलीजन में बाइबल पढ़ाई जाए, चैप्टर ऑफ मार्क्स पढ़ाया जाए, हिब्रू का ट्रांसलेटेड वो तौरात पढ़ाया जाए, ताकि हमें समझ में आए, हमें अपनी खूबसूरती और नुमाया हो, और हम देखें कि दुनिया क्या मानती है और हम क्या मानते हैं। ये खोज को रेनेसां कहते हैं, जिससे हम 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस से निपट सकते हैं। इसके बाद वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ये बात आई कहाँ से, तो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन किया उन्होंने, वो दुनिया के कोने कोने में गए। जब हम सफर करते हैं तो हमारा मेंटल आउटलुक ब्रॉड होता है, हमारे सोचने का दायरा और वसी होता है। इस मेंटल आउटलुक को ब्रॉडन करने के लिए मुझे एक गरीब नवाज की किताब से एक लाइन याद आती है, रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जो सूफी होता है ना, उसको कसीर असफार होना चाहिए, उसे मुसाफिर होना चाहिए, क्योंकि वो जितना ट्रेवल करता है ना, उतना उसके सोच का दायरा वसी होता है। आप अपने आप को ले लीजिए, शुजात भाई ने टर्की से लेकर इंडोनेशिया तक देखा, तब जब जाकर वो सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो ऐसे जलते हुए टॉपिक्स को लेते हैं। जो लोग ट्रेवल नहीं करते और अपने घरों में रहते हैं, उनके टॉपिक्स आप देखिए बहुत छोटे होते हैं। वो ये जुर्रत करते हैं ट्रेवल करने वाले कि लाओ डिबेट हो इस बात पर कि तुम्हारे पास कौन सी अच्छी चीज है और हमें अपने अंदर क्या पैदा करना चाहिए। तो ये जो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हैं, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हैं, ये किसी कौम के सोचने का दायरा वसी करती है। एट द सेम टाइम एशिया के साथ जब वो कांटेक्ट में आते
تو ان کو ایک بات سمجھ میں آتی کہ ایشیا میں صرف مسالے ہی اچھے نہیں ملتے، ایشیا میں علم بھی بہت اچھا ملتا ہے، اور پھر وہ اس علم سے سیکھنے لگے فریلی اینڈ فیئرلیسلی۔ ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی اتنی ضرورت دنیاوی پڑھائی میں ہے